enable. So today we will see the force relation during the machining in orthogonal cutting. सो ऑर्थोगोनल कटिंग में जो फोर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं, और ये जो फोर्स रिलेशन है, actually the merchant have derived the force relation, and merchant had derived a force relation in a circle. So it is also called the merchant circle in the machining. So let's see how the merchant circle and the force relation during the machining has been appeared. So let us see the force relation. This is a pencil. So forces. So during the machining, there are certain phase. One, this one is the chip. So this one is the chip tool interface. This zone is called chip tool interface. This zone is called the deformation zone. So in general, there are two places where the deformation is going to take place, and the tool face interact or relative motion between the chip has going to be occurred. So in these two phases have generally the forces are being introduced. The another force is the cutting force, which we are going to this direction, and the thrust force is the perpendicular to the this. So this one is the direction of cutting force Fc, and this one is the direction of force thrust force, means this one is a thrust force because the feed is during this direction. So feed का thrust लगेगा और उसका thrust force perpendicular to the cutting force होगा. Now look at the pictures at the zone of shear where the materials are removed due to the shear failure. So this plane, I have told you that this plane is called the shear plane. So along the shear direction, the metals goes to flow. The metal goes to flow by making the chip. So this deformation zone, one force is applied. The shear force is called shear force. Shear force denoted as Fs. The another force is acting normal to the shear force. Normal to the shear force here. So the forces which are introduced in the shear zone, this one is the shear plane where metal goes to deformed like that. Metal goes to deformed here. So this plane, one force Fs is called shear force, and one force perpendicular to the shear force, is called Fn. So there are two forces in this zone, shear zone, and the another two forces is acting along the tool chip interface. So there is a tool, this one is the tool, and this one is the your chip is flowing over the tool. So this phase, actually the force exists is called the friction force. So the friction force introduces because chip is flowing this direction, so friction is be introduced opposite to the flow of chip. So this F is called the friction force, and there is a contact of the chip and the tool. So normal to the friction force, there is a normal reaction force will be introduced. So normal to the friction force is one force is called the normal to the friction. So actually the resultant of the normal force to the shear plane and the shear force, the resultant is called R, because the if this force is Fs,
and normal force is acting along this. This means the perpendicular Fn, normal to the shear plane Fn. So this one is the perpendicular direction. So the resultant will be, the resultant of these two forces are R, called R, which will be determined by the root under Fn का square plus Fs shear force का square, because it is a perpendicular to each other. So Pythagoras law, R is equal to root under Fn square plus Fs square. Now the second thing is that at the tool face, tool chip interface, the forces is acting along the surface of the chip, means this direction. I am denoting this forces parallelly this here. So this one is the force, friction force F, it is called F, and one normal to the friction Fn, and this force is also in the perpendicular, and the this is one triangle made, and this one is called the resultant R dash. So this one is 90 degree, and this one is the normal to the friction force. So this angle will be called, anybody can be say that this angle will, what is the called this angle? So resultant force R dash is equal to the root under F by friction force into friction force plus normal to the friction, yani normal reaction force. So R dash, and here is the R. So can anybody tell what is the angle of repose. angle of repose? Very good. The angle of friction and angle of repose, it is called lambda. We can denote is the as lambda because it is the friction force, and this friction force lambda is equal to tan lambda. In your engineering mechanics class, you know that tan lambda is equal to coefficient of friction, or tan inverse mu is equal to the lambda. ये एंगल ऑफ रिपोज आप पढ़े हुए हैं फ्रिक्शन में. So no need to derive here. So basically the situation is the equilibrium condition applied by the scientist Merchant, and they told that these two reaction forces, these two resultant forces R and R dash will be lie the collinear, or it will be coincide to each other, coincide to each other, coincide to each other. So how they are coincide to each other? They have shown a Merchant circle to derive all the forces. So let us look here. I have given the notes to all that shear forces, it is the resistance to the shear of the metal in the forming of the chip, and it act along the shear plane. So shear force हम बताया कि shear plane के डायरेक्शन में लगता है. फिर एक फोर्स लगेगा नॉर्मल टू द shear plane, फिर ऑन टूल फेस और द चिप टूल फेस इंटरफेस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बिकॉज दे आर अ रबिंग एक्शन बिटवीन द chip and the tool. So there is a friction force acting along the chip of the workpiece. So the friction force and the normal to the friction force. So one angle is the angle of repose, or the angle of friction will be come between these two forces, friction force and the direction of this. So the Merchant have drawn one circle. So circle basically have formed this all forces. कैसे forces का circle है होता है, और कैसे सारा angle denote होता है, और उस circle से ही सारा force कैसे निकालते हैं आपको थोड़ा देखना होगा. So actually we have right here
The R is the resultant force of shear force and the आवाज normal में shear प्रॉब्लम force, हो रहा है सर। and then R dash will be the resultant of the friction force and normal to the friction force. So under the equilibrium condition, these forces are equal, but the sign will be negative. So lambda, I have told you, mu is the friction coefficient. ये friction coefficient depend करेगा material workpiece के material पे, उसका roughness पे. So it will be provided in the numerical example. So this one is the tan lambda mu and F by N. So let us look the shear forces, how it will be denoted as a circle. So let us first, is I am audible now? यस सर। Sorry, Yes, Yes, sir. क्लास ले रहे हैं, थोड़ा बैठो ना, थोड़ा देर बाद 5 मिनट में माते। ओके, सो शियर फोर्सेस सर्कल डायग्राम में कैसे दिखाएंगे आपको देखना है। Let us see that actually we have made this one is your the workpiece. ये सर्कल डायग्राम हम अलग से सर्कल बना सकते थे जैसे हम इधर बनाए हैं, लेकिन हम इसको वर्कपीस और चिप के बीच में बनाते हैं और सभी के पैरेलल और परपेंडिकुलर ही हम खींचेंगे, जिससे पता चलेगा आपको कैसे डिनोट करते हैं। सो फर्स्ट दिस वन इज योर वर्कपीस, हियर इज द वर्कपीस को हम इधर डॉटेड से दिखाते हैं, इधर वर्कपीस को डॉटेड से दिखा रहे हैं। सो हियर द this one is your shear plane where the deformation is take place. Here the chip is flowing, and here the tool face, tool. Now along this there is one acting the shear force. So here we can denote a Fs, and normal to this and this interface there is a friction force. So parallel to this we are denoting a friction force F. Now the cutting force is this direction, and the normal to the cutting force, that is the thrust, will be this perpendicular to each other. ठीक है, अब ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये टूल फेस इंटरफेस, देखो ये टूल फेस इंटरफेस है, तो इसके लाइन को एक्सीड करेंगे, फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू एवरीवेयर। सो फोर्स को ट्रांसमिट कर दिए हम, और इस पे एक हम नॉर्मल खींचेंगे। सो दैट एंगल विल बी नॉर्मल, दिस वन इज द एन डिनोटेड एज एन, जो यहाँ पे हम खींच के दिखाए थे आपका एन। नाउ दिस एंगल, अब इसको इससे मिला देंगे तो दिस एंगल विल बी लैम्डा, एंगल ऑफ रिपोज। नाउ दिस वन इज द शियर जोन है, शियर जोन है, शियर डिफॉर्मेशन जोन है, तो along the shear deformation zone one force will be acted and this one is called shear force, and one force will be perpendicular to it, यहाँ पे एक perpendicular लाइन खींचेंगे, इस पे इस shear force पे, इस shear force पे perpendicular लाइन खींचेंगे, तो that force is called normal to the shear plane. So यहाँ पे दिखाएंगे Fn, और देखो इसको कि ये जो कटिंग फोर्स है और ये जो थ्रस्ट फोर्स है, यहाँ पे ये तीनों लाइन मिल जाएगा, ये मर्चेंट बताया गया, ये मिल जाएगा। तो अब इसका डायग्राम हम सेपरेट देखेंगे। आर का वैल्यू बताया रिजल्टेंट, फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट और नॉर्मल टू द फ्रिक्शन फोर्स, और आर का वैल्यू सेम होगा कटिंग फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स थ्रस्ट फोर्स का, और आर का वैल्यू सेम होगा फ्रिक्शन शियर फोर्स और नॉर्मल टू द शियर फोर्स। नाउ द सर्कल डायग्राम देखिए आप। सो दिस वन इज द सर्कल, यहाँ पे शियर फोर्स, शियर डिफॉर्मेशन जोन था, और एक शियर डिफॉर्मेशन जोन में शियर फोर्स लगा, ये शियर फोर्स है। फिर इस शियर फोर्स के परपेंडिकुलर एक लाइन जाएगा, एक फोर्स आएगा,
ये परपेंडिकुलर टू द शियर फोर्स, इस फोर्स को बोलेंगे Fn। ये कटिंग जोन है, यहां से कटिंग चल रहा है तो ये कटिंग फोर्स होगा Fc। दिस फोर्स इज कॉल्ड Fc। अब इसका और इसके परपेंडिकुलर, इस कटिंग फोर्स के परपेंडिकुलर थ्रस्ट फोर्स होगा, दिस इज कॉल्ड Ft। अभी देखो यहां पे इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, दिस लाइन R, और दिस लाइन इज सेम फॉर द कटिंग फोर्स एंड द थ्रस्ट फोर्स, इसका भी रिजल्टेंट यही लाइन होगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि R जो है रिजल्टेंट, सबका रिजल्टेंट सेम होगा। अगर कोई भी दो फोर्स पता है तो हम सारे फोर्स को निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस मर्चेंट थ्योरी, मर्चेंट सर्कल। नाउ दूसरा नंबर बात कि टूल और चिप इंटरफेस पे एक यहाँ पे टूल लगा हुआ रहता है, यहाँ पे टूल लगा हुआ रहता है, यहाँ पे टूल लगा हुआ रहता है। सो टूल और ये चिप जो इंटरफेस है उसके लाइन पे मुझे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। सो दिस इज कॉल्ड, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स F is denoted as the friction force. Now इस फ्रिक्शन फोर्स पे एक परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो इसके यहां से हम खींचेंगे और ये जो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे एक 90 डिग्री बनेगा और इस फोर्स को बोलेंगे हम नॉर्मल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये एंगल जो होगा लैम्डा होगा। ठीक है, यही है मर्चेंट सर्कल। आपको जब भी मर्चेंट सर्कल बनाना हो आप इस तरह बनाइए। यहां पे एक टूल बना लीजिए और टूल के फेस को स्लाइड करके आप नॉर्मल फोर्स बनाइए, फिर इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। फिर ये शियर जोन है, यहां से चिप फ्लो कर रहा है, इस शियर जोन के अलोंग एक शियर फोर्स दिखाइए और इस पर परपेंडिकुलर लाइन दिखाइए, तो ये शियर फोर्स और नॉर्मल टू द शियर फोर्स दिखेगा। फिर इस पॉइंट ऑफ कटिंग, नोज ऑफ द टूल के लाइन में, नोज ऑफ द टूल के लाइन में एक कटिंग फोर्स दिखाइए, कटिंग फोर्स दिखाइए। ये हम इस लाइन से दिखाए हैं, इट इज द, ये एकदम सीधा लाइन होगा कटिंग नोज के एकदम परपेंडिकुलर ऑफ द रेक एंगल, इसके परपेंडिकुलर होगा एकदम। और यहाँ इस लाइन को हम दिखाएंगे कटिंग फोर्स और इसका परपेंडिकुलर दिखाइए आप थ्रस्ट फोर्स। यही फोर्सेस केवल दिखाना है और इस सबका रिजल्टेंट इस लाइन पे आएगा, सबका रिजल्टेंट इस लाइन पे आएगा। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है याद रखने का। सो R will be the resultant of Ft and Fc, and it is also the resultant of friction force and normal reaction force, and it is also a same resultant of the normal to the shear plane and the shear force same line. Clear हुआ? So this R will be the same. Now look at the diagram and you have to find the angle between the these forces. This angle, if you find the angle between the forces, then only you have to take the projection along the any other forces and you have to determine the other forces. So let's see how the angle can be determined between the two forces. Let us see. ये टूल है, सो टूल के नोज के परपेंडिकुलर, और वी कैन से दैट द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस के परपेंडिकुलर जो लाइन खींचते हैं तो वो एंगल जो होता है सरफेस टूल के रेक फेस से, वो एंगल होता है आपका, एक्चुअली दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज अल्फा। यहाँ लैम्डा लिख दिए हैं, हम थोड़ा फिर से सीट को अपडेट करके भेज देंगे। सो दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा।
दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा, रेक एंगल। ये एंगल जो है वो लैम्डा है, लैम्डा है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है थोड़ा सा। ये एंगल अल्फा है, ये रेक एंगल है। टूल फेस से परपेंडिकुलर टू द वर्क पीस जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं अल्फा। ये एंगल अल्फा है, इसको याद रखना है। हम सीट को फिर से रिफॉर्म करके भेज देंगे। नाउ सेकंड थिंग, ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा होगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, पकड़िए आप, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, पकड़ लीजिए, आपका इजी है। ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये एंगल ऑफ रिपोज है लैम्डा। तो लैम्डा, ये ट्रायंगल में लैम्डा एक एंगल हो गया, एक 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितना होगा बाबू? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस लैम्डा। करेक्ट, लैम्डा। ठीक है। अभी देखिए ये शियर प्लेन था, ये शियर प्लेन है। सो शियर प्लेन जो एंगल बनाएगा नोज के वर्कपीस के एक्सिस पे, वो एंगल होगा फाई, मतलब शियर एंगल और शियर प्लेन एंगल। अभी आपको निकालना है ये एंगल, ये एंगल अगर निकल गया तो सारा फोर्स निकल जाएगा। सो ये एंगल कितना होगा? ये लैम्डा, और ये चीज देखना है आपको कि ये एंगल, ये और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो ये टोटल 90 डिग्री है, और यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, और ये एंगल लैम्डा माइनस अल्फा होगा। कैसे, आपको यस सर। बताते हैं। ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, और ये हाँ सर। एंगल कितना है? ये एंगल है 90 ये 90 माइनस माइनस लैम्डा 5 प्लस अल्फा, और अल्फा। यस ठीक है। सर। और ये एंगल 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल 90 माइनस हो जाएगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 90 है। सो ये हो जाएगा 90 माइनस, और ये एंगल यहां से यहां तक 90 माइनस लैम्डा प्लस अल्फा। सो अगर इस एंगल को निकालना है तो हमको ये टोटल यहाँ से 90 से घटा लेंगे, तो 90 माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये फाइनली बचेगा लैम्डा माइनस अल्फा। सो दिस एंगल विल बी लैम्डा माइनस अल्फा। एक बार आप ट्राई कीजिएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है कि ये एंगल लैम्डा नहीं है, अल्फा, ये एंगल लैम्डा नहीं अल्फा। So once you have determined this angle lambda minus alpha, this angle 90 minus lambda और this angle lambda alpha, so अब कैसे निकालेंगे सारा फोर्स जो हम आपको बता रहे हैं। दिस वन इज द रिजल्टेंट फोर्स R, जो सब फोर्स के लिए, जो सारे दो फोर्सेस का रिजल्टेंट सेम है, मतलब Fs और Fn, मतलब नॉर्मल टू द शियर प्लेन, इसका रिजल्टेंट भी R है, इसका रिजल्टेंट भी R है। कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स का रिजल्टेंट भी R है, और फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का भी रिजल्टेंट R है, अकॉर्डिंग टू द मर्चेंट सर्कल। सो नाउ अगर आपको Fs निकालना है,
Fs मतलब कौन सा फोर्स, दिस फोर्स, जब भी न्यूमेरिकल देगा कोई एक फोर्स दिया रहेगा या दो फोर्स दिया रहेगा, उसके टर्म में आपको शियर फोर्स बोलेगा, कटिंग फोर्स बोलेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलेगा, फ्रिक्शन फोर्स निकलेगा बोलेगा, आपको आसानी से निकल जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में तो एक और रिलेशन आपको पता है, टैन लैम्डा का। लैम्डा का वैल्यू दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो निकल जाएगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से हमेशा आपको गिवन रहेगा। सो इससे लैम्डा का वैल्यू भी आसानी से निकल जाता है। सो अब देखते हैं कि हमको ये फ्रिक्शन शियर फोर्स निकालना है, फिर शियर फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट मेरा है आर, रिजल्टेंट है आर। अब आर और एफ एस के बीच का एंगल कितना है जरा बताओ कोई। रिजल्टेंट आर और एफ एस के बीच शियर फोर्स के बीच का एंगल बताइए। इट इज नथिंग बट लैम्डा माइनस अल्फा दिस एंगल प्लस दिस एंगल 5 प्लस 5। बस दो फोर्स के बीच का अगर मुझे आर से रिफरेंस लाइन आर को, क्योंकि आर विल बी द रिजल्टेंट एंड इट इज द सेम फॉर ऑल द फोर्सेस, टू फोर्सेस, सो consider r as a reference force and take the projection along all the force which you have to be determined। जिस फोर्स को निकालना है बस दो फोर्स के बीच का एंगल निकालना है और उसका प्रोजेक्शन लेना है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द शियर फोर्स। सो शियर फोर्स हमको निकालने के लिए हम क्या करें कि रिजल्टेंट फोर्स और शियर फोर्स के बीच का एंगल हम चेक किए, तो ये है लैम्डा माइनस अल्फा और दिस वन इज द 5। so lambda minus alpha plus phi is the angle between the force R and shear force। now take the projection of resultant R along the shear force। you have just, we take this resultant R, this direction is nothing but cosine of the angle between these two forces। so इस दो फोर्स का बीच का एंगल इतना है 5 plus lambda minus alpha। 5 is the plus direction, so 5 we can write here also। यहाँ पे हम remove कर देंगे तो nothing will be changed। so now the second one, if you want to determine this force, oh no, fn which will go to this force, so take the इसका, इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक इसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल के डायरेक्शन में। सो द नॉर्मल के डायरेक्शन में साइन लेते हैं और उसके फोर्स के अलॉन्ग प्रोजेक्शन कॉसाइन में होता है, आर साइन अल्फा आर कॉस अल्फा जानते हैं। सो इसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में इट विल बी आर कॉस 5 प्लस लैम्डा माइनस अल्फा, आर कॉस 5 लैम्डा माइनस अल्फा, एंड इसके नॉर्मल will be come this fn normal to the shear force, it will be r का sin 5 plus alpha minus lambda। now अब हम कटिंग फोर्स निकालना चाहते हैं, मतलब कटिंग फोर्स है ये, कटिंग फोर्स है ये, और रिजल्टेंट फोर्स है मेरा ये। रिजल्टेंट फोर्स विल बी टेकन एज अ रेफरेंस लाइन, रेफरेंस फोर्स। सो r इज द रिजल्टेंट एंड कटिंग फोर्स विल बी दिस। सो कटिंग फोर्स और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना है, this angle means lambda minus lambda pi। minus alpha। so take the projection of resultant R along this one is R cos lambda minus alpha, and the perpendicular projection means the thrust force Ft, and this one is equal to Ft is equal to R sin लैम्डा माइनस अल्फा। सो देख लो, एक केवल एंगल बिटवीन द फोर्स हमको मिल जाता है मर्चेंट सर्कल से, और उसके ही फोकस करके आर को, रिजल्टेंट फोर्स को रेफरेंस करके सारा फोर्स को हम निकाल लेते हैं। बोलिए सर।
सर आप हम व्हाट्सअप कर दीजिए, हम तो क्लास ले रहे हैं। ठीक ठीक। सो this is the way to determine the forces of cutting force और ft साइन निकाल लेंगे, ये लैम्डा माइनस कॉस अल्फा, लैम्डा माइनस अल्फा से के डायरेक्शन से, इसका r का प्रोजेक्शन कटिंग फोर्स के डायरेक्शन में ले लेंगे, तो इसमें इज लैम्डा माइनस अल्फा एंड इसका परपेंडिकुलर साइन अल्फा हो जाएगा। सो ft विल बी r साइन लैम्डा माइनस अल्फा और FC cutting force will be R cos lambda minus alpha, ये होगा। देखो हम ये चीज यहाँ लिख दी है, FC and FT। Similarly, if you see the direction of forces from resultant R to the friction force मेरा अब ये है, check it once। इस मर्चेंट सर्किल से कैसे आसान हो जाता है सारा फोर्सेस को निकालना, देख लीजिए आप। सो इस दो फोर्सेस है, अभी रिजल्टेंट फोर्स आर और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का एंगल कितना है, कितना है जी? सो गया क्या सब? क्या जी सर? रिजल्टेंट फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का एंगल 90 minus lambda. 90 minus lambda. Here it will be so. Yes sir. अब ये रिजल्टेंट फोर्स का हम फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्शन ले लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू द r cos 90 माइनस अल्फा और r cos इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में r sin 90 माइनस अल्फा। So this one is your friction force and this one is your normal reaction force, cos 90 minus alpha sin alpha or r sin 90 minus alpha, it will be again the cos alpha, it is the लैम्डा ना होगा सर? हाँ लैम्डा, सॉरी लैम्डा, ये लैम्डा और अल्फा के चक्कर में ही वही सर कभी कभी स्लिप हो जा रहा है। लैम्डा और अल्फा के चक्कर में ही यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यू ऑल रिमेंबर दैट एंगल will be the alpha, it is the rate angle, it is the so ये रिलेशन है आपका फोर्सेस का इन मर्चेंट सर्कल के द्वारा। अभी क्या है कि मर्चेंट जो सर्कल है कुछ एजम्पशंस इसमें लगाया और अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। That merchant have applied the minimum power consumptions, minimum energy consumptions during the machining। कोई भी मशीनिंग होगा तो उसमें पावर का कंजम्पशन हो रहा है, मोटर चल रहा है, मेरा फीड हो रहा है, मेरा वर्क पीस रोटेटिंग है, मेरा टूल का मूवमेंट है, तो दिस ऑल थिंग्स इज बेसिकली द कंज्यूम द पावर। सो अर्नेस्ट have introduced another example with the merchant that is called the Ernest Merchant theory, and Ernest Merchant theory have be considered that the power consumption should be minimum, power consumption minimum होगा और it will be follow the minimum potential energy theory। so minimum potential energy theory कहता है कि पावर कंजम्पशन शुड बी मिनिमम। सो पावर कंजम्पशन मिनिमम होने के लिए क्या कंडीशंस है, ये अर्नेस्ट मर्चेंट के साथ मिलकर डिराइव किया। सो अनदर थिंग्स इज कॉल्ड द अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी। सो अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी इज आल्सो अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फोर्स डायग्राम, forces and the power consumptions निकालने के लिए। So Ernest have taken the assumptions that other assumptions are the very similar, but the other assumptions that like the width will be constant, material will be homogeneous, and tool will be the sharp, cutting will be the orthogonal, it is will be the same for the others another
The theory involved the minimum energy principle, means the potential energy or the energy conservation or the energy expended during the machining should be minimum. So एनर्जी निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई? सो एनर्जी निकालने के लिए क्या है कि फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कटिंग फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वन इज द एनर्जी ड्यूरिंग द मशीनिंग, कटिंग फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. सो एक्चुअली वी हैव डिराइव्ड सम अदर इक्वेशन फॉर द मर्चेंट that what should be the angle of shear angle will be placed so that the energy consumption will be minimum. So let us see the how they have to be proved. So let us determine, सबसे पहले shear force निकाल लेंगे. पहला shear force क्या है मेरा, ऊपर वाले डायग्राम में देखेंगे shear force कितना था मेरा. shear force मेरा ये है, दिखाई दे रहा है सबको. Resultant cos phi plus lambda minus alpha. So here in this equation we have taken the shear force in the above Mercer circle. We have determined the R resultant cos phi plus lambda minus alpha. So resultant can be determined Fs by cos, इसको डिनोमिनेटर में ले गए और रिजल्टेंट का वैल्यू हम निकाल लिए. Now the shear force can also be determined by that this one is the shear plane. Let us look that this one is your the shear plane, and here the width is width of the material, and the chip is flowing here like that. In 3-dimensional figure we can show you that chips will be flowing like this way. सो द शियर फोर्स हमको निकालने के लिए अगर शियर स्ट्रेस गिवन है, शियर स्ट्रेस गिवन, एक मिनट ये लेना है अटेंडेंस. क्लास नेक्स्ट क्लास में हम डिटरमाइन करेंगे कि अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक योर अटेंडेंस ऑफ टुडेस क्लास. देखो इसके बाद टूल पढ़ाएंगे, टूल वियर, टूल फेलुअर, टूल लाइफ, टूल में कौन कौन सा वियर होता है, टूल का क्या ज्योमेट्री है, सिग्नेचर है, ये सब पढ़ाएंगे. कटिंग फ्लूइड कौन सा यूज करते हैं ये बताना है, और फिर टर्निंग का, ड्रिलिंग का, शेपिंग का, कुछ न्यूमेरिकल, क्योंकि सारा मैकेनिज्म इज द सेम, ऑल द एंगल, ऑल द मैकेनिज्म should be the same, only you have to determine the numerical formulation